Greetings to one and all. Wish you all a happy and blessed Sunday. It is our honor and pleasure to introduce to you all our today's speaker. Reverend Benjamin Nand is a graduate of Union Biblical Seminary of the batch 1883 to 87. Reverend Benjamin served as church pastor in Mennonite Church for 32 years, and he is currently serving as the executive director in Mennonite Christian Service Fellowship of India. This organization is a group of 9 Mennonite and Brethren conferences found in India and Nepal. The topic for today's meditation is Post-Corona Church. I hope and pray that you all will be blessed by today's sharing. God bless you all. आप सबों को जय मसीह की। आज के जो हमारे प्रचारक हैं वो रेवरेंड बेंजामिन नंद हैं, जो कि यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 32 साल एक पासबान के रूप में मेनोनाइट चर्च में अपनी सेवकाई करी और अभी वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मेनोनाइट क्रिश्चियन सर्विस फेलोशिप ऑफ इंडिया में सेवकाई कर रहे हैं। ये संस्था 9 मेनोनाइट और ब्रेदरन कॉन्फ्रेंसेस जो कि इंडिया और नेपाल में पाई जाती है उसकी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक और बार अवसर दिया कि हम उसके वचन में से सुन पाए। हम आशा करते हैं कि जो वचन है वो हम सबको आशीषित करेगा और हम परमेश्वर के द्वारा और आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। At the outset, I would like to extend my thanks to our sovereign God. आज के इस समय में सबसे पहले तो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ For such a wonderful and blessed time कि उन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन और सुंदर समय प्रदान किया to share His living word through YouTube. ताकि मैं जीवते वचन का YouTube के माध्यम से बता सकूं। I have taken the scripture portion from, और आज का वचन जो हमारे सामने लिया गया है वो है, it is found in the Gospel of Matthew, पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार chapter 22 verses from 1 to 14. 22वां अध्याय उसका 1 से 14 पद लो। And the topic is और आज का जो विषय है Post-Corona Church, कोरोना के पश्चात प्रभु की कलीसिया, the pastoral counseling and care. पासबानिक काउंसलिंग और चिंता। So before we share the word of God, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले let us bow down ourselves हम परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाएं and let us pray together. और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Lord, our Heavenly Father, we thank you and praise you because you are our God, God of every moment. As you know that we have been going through such a typical and challenging time due to pandemic of COVID-19, as many things are locked down, including our activities. But we thank you for your heavenly provision. As a result, although we are not in the structural setup of your church building, but we are as a family members, along with our friends, can spend our valuable and blessed time unto your holy feet. We can spend our valuable and blessed time. So dear Lord, we ask your blessings. Rather, we ask your manifold blessings in our life. Help us, dear Lord, so that we may be able to focus on your living word and receive your blessing. Even in the challenging time, we may be able to receive your blessings. So, dear Lord, you be with us, bless us, and utilize us for your glory alone. We submit everything unto your holy feet. We give you all the glory and honor. In Jesus' most precious name we pray. Amen. आमीन। Dear friends, प्यारे मित्रों, I have taken the scripture portion. जो पाठ हमारे लिए चुना गया है, It is found in the Gospel of Matthew, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय उसके 1 से 14 में पाया जाता है। as we all know so well, जैसा कि हम सब जानते हैं, that due to pandemic of COVID-19, कोविड-19 की महामारी के कारण से our way of living and activities have given us हमारे जीवन जीने का जो तरीका था वो बदल चुका है। a new dimension to think multiple times और
अलग तरीके से सोचने की हमारे सामने एक परिस्थिति आई है, about our future and our present. जिससे हम अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़ी अलग रीति से सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। Of how we from now onwards schedule our daily activities. और किस प्रकार से आज के समय से हम अपनी आने वाली गतिविधियों को रखते हैं, करते हैं, Which are related to our family, जो कि हमारे परिवार से संबंधित है, our jobs, हमारी नौकरी से संबंधित है, our businesses, हमारे बिजनेस से संबंधित है। and apart from all these things, और इन सबों को अगर छोड़ दिया जाए तो भी our church activities. हमारी कलीसिया की गतिविधियों से भी ये संबंधित रखता है। We do assume that हम ऐसी बात सोचते हैं कि we have no proper idea or base about हमारे पास किसी भी प्रकार का ऐसी सोच नहीं है how we are going to manage ourselves हम किस प्रकार से अपने आप को इस समय में रख सकते हैं within this circle of uncertainty. जिसमें कि हमारे सामने ये एक अनिश्चितता की बात सामने आ चुकी है। We do come across about हम इस बात के सामने आते हैं कि so many information बहुत सारी चीजों का that are being served through mass media, जो कि आज मास मीडिया, इंटरनेट और बहुत सारे माध्यम से हमारे सामने रखी जा रही है, that are yet to be confirmed जो कि बहुत ज्यादा अभी तक कंफर्म होने वाली है, about the security of life, जिसमें कि हम अपनी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचते हैं and its future, और उसके भविष्य के बारे में, whether from जिससे कि World Health Organization WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से or from any other department of the government sector, और सरकारी बहुत सारे डिपार्टमेंट से जो हमको जो बातें बताने जाने वाली हैं around the world. और पूरे संसार में, However, लेकिन a good awareness about the survival of और हमारे जीवन को अच्छी तरीके से बिताने के लिए बहुत ही अच्छी बातों को हमारे सामने लाया गया है, our day-to-day lives have been repeatedly made known to us. और जिससे कि हमें हमारे दिनचर्या की बातें हमारे सामने बदलती गई हैं और आती गई हैं। There are three things, और हमारे सामने तीन बातें हैं, and those things are very important और जो ये तीन बातें हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, in our day-to-day life. जो कि हमारे दिनचर्या के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। We can observe them हम उस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं as a precautionary measure, एक बहुत ही प्रिकॉशन के रूप में, एक बहुत ही सही तरीके से रहने के रूप में, and those are और ये है put mask on your face, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, sanitize yourself, अपने आप को साफ सुथरा रखें follow or obey the social distancing. और सामाजिक दूरी को बनाकर रखें। Even then, a big question arises here. इन बातों के बाद भी हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, Does these 3 points are the only way of life? क्या ये तीन बिंदु ही सिर्फ जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है? Can they save our life? क्या ये हमारे जीवन को बचा सकते हैं? Maybe yes, शायद हाँ or maybe no. और शायद नहीं। If yes, then अगर हाँ तो how long? कितने समय तक? And if no, और अगर नहीं, then what is the solution for this? और अगर नहीं तो इस बात का उत्तर क्या है? I would say and encourage that मैं ये कहना चाहता हूँ और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूँ कि if you are a believer, अगर आप विश्वासी हैं, then you need to rely on God's word. अगर आप विश्वासी हैं तो आपको परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहना पड़ेगा। As it says in the book of Luke, chapter 12, verse 5, जैसा कि परमेश्वर का वचन लूका उसके 12वें अध्याय के 5 पद में कहता है। can you read it in Hindi? यस, Chapter 12, verse 5. लूका उसका 12वां अध्याय और उसके 5 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ
उसी से डरो। But I will warn you whom to fear. Fear him who after he has killed has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Let me make my side a bit clear to you. मैं अपने साइड को क्लियर थोड़ा सा आपके सामने साफ साफ रखना चाहता हूँ कि That by saying this, और ये इस वचन को पढ़ने के द्वारा से I'm not defending or against of these 3 points. मैं इन बातों के विपरीत नहीं जाना चाहता। ये 3 बातें जो हमारे सामने सरकार ने रखी है उसकी विपरीत नहीं जाना चाहता, Which are suggested by World Health Organization or any setup. जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के सामने से हमारे लिए रखी गई है। Dear friends, मेरे दोस्तों, let us look into his words हम परमेश्वर के वचन में देखें only for few minutes. कुछ समय के लिए। In Matthew chapter 22 verse 1 to 10, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 1 से 10 पद तक, where it says about the kingdom of heaven. जहाँ कर की स्वर्ग के राज्य के बारे में कहा गया है। Let us look into this phrase. आइए हम इस पंक्ति को देखें। There are 2 expressions यहाँ पर 2 भाव हैं। found here. यहाँ पर मिलते 2 भाव हैं, Kingdom of God परमेश्वर का राज्य, and kingdom of heaven. स्वर्ग का राज्य। These 2 represent exactly the same idea. ये दोनों बातें, ये दोनों पंक्तियाँ एक ही बात को सामने लाती हैं। For a devout Jew, the word God was so secret. एक यहूदी के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र है। And as for a Jew, और एक यहूदी के अगर नजरिए से हम देखें, it was very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है to use a word God कि वो परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करे, very lightly and very frequently. ताकि वो परमेश्वर के नाम को बहुत ही हल्के रूप में नहीं ले सकते थे। So Matthew here wrote primarily for Jewish people. तो मत्ती ने अपने इस गॉस्पेल को सबसे पहले महत्वपूर्ण रीति से पहले उन्होंने उसको यहूदियों के लिए लिखा। Therefore, he normally speaks about इस प्रकार से वो सामान्यता से बात करते हैं, the kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करते हैं, Whereas Mark and Luke prefer the alternative. जहाँ की लूका और मरकुस एक दूसरी बात को लेकर चलते हैं And they use this term as the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य की बात को का जो ये टर्म है परमेश्वर का राज्य, उस भाव को सामने लाते हैं, Which was a very easier expression for the non-Jews to understand this. जो यहूदी नहीं है उनके लिए ये बहुत ही आसान वाक्य है। This highlights the important part of the theme of the kingdom. और ये एक राज्य के लिए, किंगडम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को सामने रखता है, Played in the teaching of Jesus himself. जो कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को रखा। We are told that हमें ये बात बताई गई है कि it was right at the heart of his gospel message, जो कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की एकदम बहुत ही जरूरी बातें थी, which is found in the Gospel of Mark chapter 1 verse 15. जो कि मरकुस उसका पहला अध्याय और उसके 15वें पद में पाया जाता है। समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। Yes, it says in English, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God has come. Repent and believe in the good news. And when the disciples were sent out on their first mission, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले अपने पहले मिशन की ओर गए थे, it was the message of the kingdom. ये एक राज्य का सुसमाचार था that they were to proclaim. जो कि उनको लोगों को सामने रखना था। There are 2 scriptures for this particular phrase. यहाँ पर इस
एक पंक्ति के लिए दो वचन, दो स्थल हमारे सामने रखे गए हैं। Gospel of Luke chapter 9 verse 2 लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका दूसरा पद, and chapter 10 verses from 9 to 11. और लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 9 से 11 तक। So this kingdom has certainly no connection with the world. और इसी प्रकार से ये जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, इसका किसी प्रकार से संसार से कोई नाता रिश्ता नहीं है, But of God. लेकिन परमेश्वर से है। So whether present or future, लेकिन भविष्य और वर्तमान की बात अगर हम करें, God's kingly ruled demands man's obedience, submission. परमेश्वर के राज्य का जो नियम है वो मनुष्य की आज्ञाकारिता को दर्शाता है। Men are not called upon to build or to establish the kingdom for themselves. मनुष्य को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो अपने खुद के लिए राज्य का निर्माण करे, But to only seek for it लेकिन उनको इसलिए बुलाया गया ताकि वो राज्य की खोज करे and enter into it. और उसमें अंदर जाने की कोशिश करे। We may read the Gospel of Matthew chapter 6 verse 33. हम यहाँ पे मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके 33 पद को पढ़ेंगे। And then Gospel of Mark chapter 9 verse 47. और उसके पश्चात मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसके 47 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 6वां अध्याय उसके 33 पद में यहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Okay, read also Gospel of Mark chapter 9 verse 47. मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसका 47 पद, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाएं तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक में डाल दिया जाए। The major question for all of us is, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो यह है कि did post COVID-19 left us nowhere? क्या कोविड-19 बीमारी ने हमें किसी भी कहीं का भी नहीं छोड़ा? As far as seeking His kingdom in a structural setup, अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज एक भवन के रूप में करते हैं, which is called a church building, जो कि भवन कहा जाता है, जिसे as many of us may react जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि by saying, ये कहने से there is no joy, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई उल्लास नहीं है, आनंद नहीं है, no peace, किसी भी प्रकार की शांति नहीं है, no blessings, किसी भी प्रकार की आशीष नहीं है, as far as having our Sunday worship at our home is concerned. अगर हम अपने रविवार आराधना को अपने घर में करते हैं। So sometimes we may say that we are in quarantine. जब हम अपने घर में रविवार आराधना को करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम क्वारंटाइन में हैं। It could be a reality to some extent. ये एक प्रकार से सच्चाई हो सकती है, But here we would not have any doubt, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, प्रश्न नहीं आएगा, nor any argument. और किसी भी प्रकार का हमारे सामने विवाद नहीं आएगा। Rather, we would like to talk और यहाँ पर लेकिन हम इस बात के बारे में बात करना चाहेंगे on how and in what manner और किस प्रकार से we as a believer spend our time with the Lord on Sunday worship in any setup. हम एक परमेश्वर के विश्वासी होने के रूप में रविवारी आराधना में किस प्रकार से अपने समय को व्यतीत करते हैं। Okay, let us try to understand this point और यहाँ पर हम एक बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं from biblical and theological point of view. जिसमें कि इस बिंदु को हम बाइबल और धर्म विज्ञान के बिंदु के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। The first part of this parable is for the Jewish people ये दृष्टांत का जो पहला हिस्सा है वो यहूदियों के लिए है, who refused to come for this royal wedding. जिन्होंने इस शाही विवाह में आने के लिए नकार दिया, मना कर दिया। On other parts of this parable, और इस दृष्टांत के दूसरे हिस्से में a story of a guest ये एक मेहमान की कहानी है who appeared at a royal wedding feast without
wedding garment. जो कि शाही विवाह में आया, लेकिन उसने विवाह का वस्त्र पहना ही नहीं था। Let me elaborate this parable for you better understanding. और मैं इस दृष्टांत को आपके सामने बहुत ही बड़े और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। Those who knew the summons of God, और जो परमेश्वर के आह्वान को समझते थे और जानते थे, they attended this royal wedding feast by wearing their garments. उन्होंने इस शाही विवाह शामिल होने के लिए विवाह का वस्त्र पहना। It means it shows their preparation. और इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि उनकी वहां पर तैयारी थी। As we go to verse 9, अगर हम पद 9 की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, we find that they were fully prepared और हम यहाँ देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छी रीति से तैयार थे and waiting for this feast. और वो इस भोज के लिए तैयार थे और उसके लिए इंतजार कर रहे थे। And this was the reason that और यही कारण था कि they were treated as a guest. और उनको मेहमान के रूप में वहां पर देखा गया। But on other side, लेकिन दूसरी तरफ में देखें, as it says और जैसा कि यहाँ कहता है in verse 12, 12वें पद में, how did you get in here without a wedding robe? तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? This was the first picture of this parable. और ये इस दृष्टांत का पहला चित्र है, As they were none other than the first invitees क्योंकि वो पहले जो न्यवताहारी थे वो नहीं थे, who missed out the royal invitation. जिन्होंने जो पहले न्यवताहारी थे, जिन्होंने इस शाही विवाह के भोज को नहीं आ पाए And went away for their own businesses. जो कि इसको छोड़ करके कहीं और अपने काम काज में चले गए। And you will find this incident in verse 5. जिस घटना को आप पद 5 में देखते हैं। So as they were back from their businesses, और जब वो अपने कार्य से, अपने काम काज से वापस आए, they had nothing to wear, उनके पास कोई भी वस्त्र पहनने के लिए ही नहीं था, to be able to receive an honor from the king. ताकि वो एक राजा से एक सम्मान को वो ले सके। They partook the royal feast, उन्होंने उस शाही भोज को छोड़ा, but it was the king लेकिन वो राजा था, who had the authority to ask those लेकिन वो राजा था जिसके पास ये अधिकार था कि उसने ये पूछा who did not have the garments. जिनके पास ये शाही वस्त्र नहीं था। And we know, और हम जानते हैं कि, and we know it very well, और हम यहाँ पे बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, this particular group of people, they did not have any answer to reply to the king. और इस कुछ लोगों का जो समूह था, इनके पास राजा को जवाब देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। And it was a bitter consequence for such a personality. और ये उनके लिए बहुत ही कड़वा समय था उनके सामने। Dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, I want to share few examples और मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर उदाहरण को रखना चाहता हूँ। of myself मैं अपने खुद के उदाहरणों को रखना चाहता हूँ। being in the pastoral ministry for the past 32 years. 32 सालों से पासवानी सेवकाई में रहने के कारण से मैं कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहता हूँ। There happened to be some wise people यहाँ पर मैंने अपने जीवन में कुछ बहुत ही नम्र और अच्छे मनुष्यों को देखा है, coming over to worship the Lord on Sunday with well dressed. जो कि परमेश्वर की आराधना करने रविवारी आराधना में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर और बहुत अच्छी वेशभूषा में आते थे। I would have asked them one question. लेकिन मैं उनसे एक बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछना चाहता था। And the question was, और वो प्रश्न था कि do you hold the same spirit and quality to have Sunday fellowship? क्या आप जिस प्रकार से आपने वस्त्र पहना है उस हिसाब का आप अपने अंदर वो आत्मा को रखते हैं? As you sit together और जब आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, at your home जब आप घर में बैठते हैं to worship the Lord, परमेश्वर की आराधना घर में बैठते हैं, तो किस प्रकार से जिस प्रकार आप चर्च में तैयार होके आते हैं उस प्रकार आप घर में भी रहते हैं? do you follow this rule in your personal life? क्या आप इस बात को अपने जीवन में धारण करते हैं? In your personal and family life? क्या पारिवारिक जीवन में आप इसको पालन करते हैं? Many times we feel that बहुत समय हम ये बात को सोचते हैं
it is good to be well prepared as far as going to have the fellowship in the church building is concerned. जब हम बाहर कलीसिया में या रविवार आराधना के लिए चर्च भवन में जाते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होके जाते हैं। But what about that moment of our spiritual life when we sit at our home and have the fellowship with the Lord? लेकिन जब हम घर में बैठते हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठते हैं तो क्या वो सोच, वो अच्छे से तैयार होने वाली जो सोच हमारे दिमाग में रहती है, क्या वो सोच हमारे दिमाग में उस समय भी रहती है? At the time, especially at the time of lockdown. और क्या ये बात लॉकडाउन में लागू होती है? As nobody is there to watch or observe us about, क्योंकि इस समय हमें कोई भी देखने के लिए नहीं है कि हम अच्छे से तैयार हुए हैं कि नहीं, as far as our preparation is concerned, और अगर हमारी तैयारी है भी कि नहीं, from our outwards, हमारे बाहरी वेशभूषा के, plus our garments are concerned. जिससे हम अपने कपड़ों के बारे में देखते हैं अगर, तो हम उसके लिए नहीं सोचते ज्यादा। Remember that ये बात को ध्यान में रखिए, no one is going to watch you, कोई भी आपको नहीं देख रहा है, and nobody is going to say anything to you. और आप जब अपने घर में प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। Like why you have not worn the garment as far as to receive the blessings of God through the fellowship is concerned. आपने इस वेशभूषा, अच्छी वेशभूषा को परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं पहना है? Remember, my friends, ये बात को याद रखिए मेरे मित्रों, it is not the people or the human being, ये ना ही मनुष्य है और ना ही मनुष्य जाति है, but it is the Lord लेकिन वो परमेश्वर है who watches everything, जो कि हर बात को देखता है, and He watches everything from the heaven. और जो हर बात को, हर चीज को स्वर्ग से देखता है। So since He has been watching everything, जब वो हर बात को, इस समय हर बात को वो देख रहे हैं स्वर्ग से, so many a time we think that और हर बहुत समय हम ऐसा सोचते हैं कि we can simply sit to हम have the fellowship of God. हम कैसे भी किसी भी वेशभूषा में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Is it good in the sight of God? क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में सही है? What do you feel about it? क्या आप क्या सोचते हैं? You think that we can have the fellowship of God in any situation or whatever we wear, we feel that God is not going to look after it. हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम प्रभु की आराधना या परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम कुछ भी पहन के बैठ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But we must remember, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी है, God has everything in His mind. परमेश्वर के दिमाग में, परमेश्वर के हृदय में सारी बातें हैं। He has everything in His heart. उनके दिल में सारी बातें हैं। We can cheat the people, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, but we cannot deceive our God. लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। So I would say at this moment that और इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि as a pastor, एक प्रभु का दास होने के रूप में I would like to appeal all of you. मैं आप सबों से ये निवेदन करना चाहूंगा, Don't take the fellowship of God in an easiest way. परमेश्वर की आराधना को एक आसान और साधारण रीति की आराधना में ना लें। As you sit at your home जब आप अपने घरों में बैठते हैं without having any particular dress up, किसी भी प्रकार के वेशभूषा, कोई ऐसी वेशभूषा को पहनकर जब हम घर में बैठते हैं, you must remember that हमको ये बात ध्यान में रखनी है, you are sitting in the presence of God. हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं, You are sitting in the almighty presence of God. हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं, So we must honor Him, must respect Him. हमें उन्हें आदर देना है। So do we feel to carry out the same quality of those invitees? क्या हम जिन न्योताहारियों को बुलाया गया था, क्या हम उनके जैसी क्वालिटी को अपने जीवन में पाते हैं? Those who wore the royal garments, जिन्होंने शाही वस्त्र को पहना, and that was the reason that they were treated as a guest. और उसी कारण से जब उन्होंने शाही वस्त्र को पहना तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से वहां स्वागत किया गया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, on other side we need to also see और इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें, those who went for their business जो अपने कामकाज की ओर चले गए थे and then joined the royal feast.
और उसके बाद वो आकर शाही भोज में सम्मिलित हुए। The result was, उसका जो परिणाम था it was very drastic. बहुत ही दर्दनाक परिणाम हुआ। As a result, और उसके परिणाम स्वरूप they were questioned by the king. उनको राजा के द्वारा से प्रश्न किया गया And these people had no answer. और उन लोगों के पास मेरे प्रियो किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं था And they were thrown into fire. और उनको आग में फेंक दिया गया। Do you think क्या आप सोचते हैं that you and me आप और मैं need to be thrown into fire? क्या हमें भी ऐसी आग में फेंक देना चाहिए? Or do you think और क्या आप सोचते हैं God is going to throw into the fire? कि परमेश्वर हमको आग में फेंक देगा? No, नहीं, it is not the intention of God. ये परमेश्वर की सोच बिल्कुल नहीं है। God wants us to have fellowship with Him. परमेश्वर हमें हमारे साथ में फेलोशिप करना चाहता है, हमारे साथ आराधना करना So चाहता it is है। a very clear intention of God for the human being. ये परमेश्वर की एक बहुत ही महान योजना है हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। He wants that वो ये चाहते हैं कि we need to sit with Him हम उनके साथ बैठे with full preparation, पूरी तैयारी के साथ, wearing His garment. उनके दिए गए वस्त्र को पहनकर। Now the question here is, यहाँ पे एक प्रश्न ये है, what is the garment? वो वस्त्र क्या है? It is nothing but the body of Christ. ये कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर की देह है, Rather I would प्रभु यीशु मसीह की say, देह है। that it is the person of Christ. ये अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। We need to wear Him. हमको प्रभु यीशु मसीह को पहनना We है, need to put Him हमको उसको पहनना है in our own life. हमारे खुद के जीवन में, And as a result, और इसके परिणाम स्वरूप we shall be having हम उस चीज को ग्रहण कर सकेंगे। the great blessings from the Lord. परमेश्वर की उन महान आशीषों को हम अपने जीवन में ग्रहण कर To सकेंगे have that royal feast कि हम उस शाही भोज को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में, As the word of God says, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, especially for those people खासकर उन मनुष्यों के लिए who many a time do not care about being in the presence of God. जो बहुत समय ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हैं। And those people think that it's very easy to, call upon the name of God और ये सोचते हैं कि परमेश्वर के नाम को लेना बड़ा आसान है and to have the fellowship of God. और परमेश्वर की आराधना को लेना बहुत आसान है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I want to encourage you मैं आपको यहाँ पर उत्साहित करना चाहूंगा, and I want to tell you, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, be careful. सावधान रहिए। We cannot mock our God, or we cannot take it easy as far as God and His personality is concerned. हम परमेश्वर को आसान एकदम सरल रूप से नहीं ले सकते। So what the word of God says here, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यह कहता है कि I would request you to open the word of God with me, मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में से निकालें, which is found जो कि पाया जाता है Ecclesiastes chapter 5 verse 1 to 2, सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद, where it says, जहाँ पर लिखा है, please read it in Hindi. जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हैं। So let us honor our God, यहाँ पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, whether we are at our home, जब हम अगर हम अपने घर में हैं, whether we are at anywhere, अगर हम कहीं और भी हैं, let us honor Him, हम उसको धन्यवाद दें, because He is a God क्योंकि वो परमेश्वर है, who pleased to have honor. क्योंकि वो चाहता है कि हम उसे सम्मान करें। So may God bless us हमें परमेश्वर आशीष दे and help us और हमारी मदद करे, to understand His word ताकि हम उसके वचन को अच्छी तरीके से समझ सकें by the help of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ से।
Amen. आमीन। God bless us. प्रभु आप सबको आशीष दे। Let us stand up and look to the Lord in prayer. आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और प्रभु की उपासना करें और प्रभु की से प्रार्थना करें। Dear Lord, we thank you for the time of having fellowship together through your living word. We know and believe that you are our living God. You are always with us. And as your word says, you will be always with us. Help us, dear Lord, to have faith in you and live this life for you. So as we have heard your word, we pray to the Holy Spirit, lead and guide our lives to accept the word of God in our lives. Be with us, dear Lord. Bless us. In Jesus' most precious name we pray. Amen. आमीन। Let us receive the benediction. आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. आमीन।